قاصد یزدگرد کو آخری دن کی لڑائی کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ یزدگرد بیٹھ گیا تھا اور یوں آنکھیں پھاڑے اس عہدیدار کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اتنے میں یزدگرد کی ماں لڑکی کے ساتھ دوڑتی کمرے میں داخل ہوئی اور یزدگرد کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا جیسے وہ بچہ ہو۔ کیا ہو گیا یزدی؟ ماں نے کہا۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یزدگرد بم کی طرح پھٹا۔ اور اس کی ذمہ دار تم ہو، تم جو میری ماں ہو۔ مجھے رستم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے مامتا کی زنجیروں میں باندھے رکھا۔ وہ غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ لڑکی اس خیال سے آگے ہوئی کہ یزدگرد پر اسے غلبہ حاصل ہے۔ اس نے شراب کا وہ پیالہ جس میں اس نے ذہن کو بے حس کرنے والی دوائی ملائی ہوئی تھی اٹھا کر یزدگرد کو آگے کیا۔ یہ ساری مصیبت جرنیلوں کی بزدلی کی وجہ سے آئی ہے، لڑکی نے جذباتی لہجے میں پیار سے کہا، اور اس کا سارا بوجھ اکیلے شہنشاہ پر آ پڑا ہے۔ اس نے شراب کا پیالہ یزدگرد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، 2 گھونٹ پی لیں، غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ مسلمان کوئی جن بھوت تو نہیں ہے۔ یزدگرد نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا۔ یہ خالص سونے کا وزنی پیالہ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ یزدگرد نے پیالے کو دیکھا، پھر لڑکی کے حسین چہرے کو دیکھا جیسے پیالے کی دلکشی اور لڑکی کے حسن کا موازنہ کر رہا ہو۔ اچانک اس نے پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ہاتھ اپنے سر سے اوپر کیے اور پوری طاقت صرف کر کے پیالہ لڑکی کے سر پر دے مارا۔ ایک وزنی پیالہ، دوسرے جوان آدمی کی طاقت۔ لڑکی کا سر ڈولا، پھر اس کی ٹانگیں دوہری ہوئیں اور وہ ایک پہلو پر گر پڑی۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کے ریشم جیسے ملائم بالوں میں سے فرش پر ٹپکنے لگا۔ ہوش میں آ یزدی؟ نورین نے اٹھ کر اپنے بیٹے کو کندھوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس بیچاری کو پیار کا یہ صلہ دیا ہے؟ تمہیں بھی یہی صلہ ملنا چاہیے ماں۔ یزدگرد نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ میری ماں ہو۔ اس وقت مجھے بیدار ہونا چاہیے اور یہ لڑکی مجھے شراب پلا رہی ہے۔ حرم میں میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، لیکن تم میرے لیے اس لڑکی کو خاص طور پر لائی تھی۔ یہ راز مجھ پر آج کھلا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مجھ پر نشے کی طرح غالب آنے کا سبق پڑھایا تھا۔ تم اس کوشش میں تھی کہ میں اس محل میں قیدی بنا رہوں اور محاذ پر نہ جاؤں۔ یزدگرد نے دیکھا کہ پیغام لانے والا فاجی وہیں کھڑا ہے۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، یزدگرد نے اسے کہا۔ اس لڑکی کو پاؤں سے پکڑو اور گھسیٹ کر باہر پھینک دو۔ کسی کو بتا دینا کہ ہوش میں آ جائے تو اپنے گھر چلی جائے، مرتی ہے تو اس کی لاش اس کے ماں باپ کے حوالے کر دینا۔ اتنا بے رحم نہ بن یزدی، نورین نے کہا۔ اس عظیم سلطنت کو اس کے بادشاہوں اور جرنیلوں کے گناہ کھا گئے ہیں۔ اس سلطنت نے ایک نہ ایک دن تو ڈوبنا ہے۔ میں تجھے ڈوبتا نہیں دیکھ سکتی۔ مت بھولو ماں، یزدگرد نے کہا، مت بھولو کہ لوگ مجھے تمہاری قید سے نکال کر کیوں مدائن لائے تھے، کسرا کی اس عظیم سلطنت کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو۔ تم مجھے پھر اسی قید میں ڈالنا چاہتی ہو جس میں میری عمر کے 16-17 سال گزر گئے تھے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تاریخ ساری دنیا کو ہمیشہ یہ سناتی رہے کہ فارس کی فوج کو شکست ہوئی تو یزدگرد ماں کے ساتھ بھاگ کر کسی گمنام گوشے میں جا چھپا تھا۔ میں مرد ہوں ماں، اب میرے راستے میں نہ آنا۔ مدائن کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ یزدگرد نے ماں کو رعایا کی ایک عام عورت کی حیثیت دے کر حکم دیا کہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو جائے۔ اس ایک فوجی عہدیدار کے پیچھے کئی اور فوجی جو قادسیہ سے بھاگے تھے اور گھڑ سوار تھے مدائن میں داخل ہوئے۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ وہ دہشت زدگی کے انداز میں مدائن کے لوگوں کو بتاتے آ رہے تھے، سب کٹ گئے، کوئی نہیں بچا۔ رستم مارا گیا، بہمن جادویہ مارا گیا، جالینوس مارا گیا، سب جرنیل بھاگ گئے۔ عربی انسان نہیں، وحشی درندے ہیں۔ ہزاروں ساتھی ڈوب گئے۔ اپنا بندوبست کر لو، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اپنا مال و دولت چھپا لو۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے مسلمان واقعی خونخوار درندے ہوں اور انہوں نے ان فارسیوں پر بے خبری میں ساری فوج کو چیر پھاڑ دیا ہو۔ یہ شکست خوردہ فارسی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے مظلومیت کا اظہار کر رہے تھے۔ شکست کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ جن لوگوں کے گھروں میں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات تھے اور جن کی بیٹیاں جوان تھیں، انہوں نے مال و متاع اور بیٹیوں کو لے کر شہر سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہر کے چند ایک معززین شاہی محل کے سامنے جا پہنچے۔ انہیں دیکھ کر شہر کے لوگ بھی وہیں اکٹھے ہونے لگے۔ ان سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ مدائن میں ان کے تحفظ کا انتظام موجود ہے۔ یزدگرد کو اطلاع ملی تو وہ باہر آ گیا۔ معززین نے لوگوں کو خاموش کرایا اور یزدگرد کے ساتھ بات چیت کی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہماری فوج کو شکست ہوئی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ اپنے کچھ فوجی آئے ہیں جن میں بعض زخمی بھی ہیں۔ معززین نے یزدگرد کو یہ بھی بتایا کہ ان فوجیوں نے کیسی کیسی باتیں سنا کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ یزدگرد نے حکم دیا کہ ان فوجیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا جائے اور جو فوجی قادسیہ سے بھاگ کر مدائن آئے انہیں باہر روک کر یہ حکم سنایا جائے کہ شہر کے لوگوں کو قادسیہ کی کوئی بات نہ سنائی جائے اور شہر میں خوف و ہراس پھیلانے والوں کو سزائے قید دی جائے گی۔ اور اے شہر کے لوگوں، یزدگرد نے لوگوں سے خطاب کیا، کیا ان عربوں کو
शिकस्त देने का ये तरीका है कि तुम शहर छोड़कर भाग जाओ? मदाइन फारस की इसमत है, क्या तुम अपनी अजीम सल्तनत की असमत अपने दुश्मन के हवाले कर जाओगे? जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे दुश्मन तुम तक पहुँच जाएगा। ताक़ुब उसी का किया जाता है जो भागता है, और जो मुकाबले में सीना सिपर हो जाते हैं वो दुश्मन को न सिर्फ रोक लेते हैं बल्कि उसे भगा भी दिया करते हैं। और उसका ताक़ुब क्या करते हैं? उसे अपनी सरजमीन से निकाल कर दम लिया करते हैं। ज़रतुश्त की कसम, अरबों को तुम भगाओगे। वो मैदान जंग है जिसमें फतह भी हो सकती है और शिकस्त भी, लेकिन जंग का फैसला शहरों में हुआ करता है और कोई शहर मुहासरे की कामयाबी के बगैर फतह नहीं हुआ करता। तुम यहाँ से भागने की बजाय दुश्मन के मुकाबले की तैयारी करो। मैं तुम्हें ये भी यकीन दिलाता हूँ कि अरबी लश्कर मदाइन तक नहीं पहुँच सकेगा। वो अभी तक कादसिया में है। मदाइन तक कई जगहों पर हमारी फौज मौजूद है। रास्ते में दजला है, अगर दुश्मन दजला तक पहुँच भी गया तो दजला के पुल तोड़ देंगे, वहाँ एक भी कश्ती नहीं छोड़ेंगे। अरबी दरिया उबूर करेंगे किस तरह? जाओ, अपने घरों को जाओ और जंग की तैयारी करो, बाकी इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। यज़गर्द ने मदाइन के लोगों को खूब गरमाया और उनके दिलों से मुसलमानों का खौफ बहुत हद तक उतार दिया। उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वही लोग जो डरे डरे से उसके पास आए थे वो जोशो खरोश से नारे लगाते हुए चले गए। यज़गर्द वापस महल में जा रहा था तो पुरान आ गई। पहले बयान हो चुका है कि पुरान फारस की मलिका थी, लेकिन उसे हटाकर यज़गर्द को तख्त पर बिठाया गया था। पुरान के मुतालिक जो तफसीलात पहले बयान हो चुकी हैं उनमें एक ये भी थी कि वो तख्त-ओ-ताज में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी जितनी दिलचस्पी उसे फारस के दिफा से थी। उसे इत्तला मिली कि फारस की फौज ने कादसिया में बहुत बुरी शिकस्त खाई है और तमाम जर्नैल मैदान छोड़ गए हैं और कुछ मारे गए हैं, तो वो यज़गर्द के पास दौड़ी आई। यज़गर्द उम्र में उससे बहुत छोटा था और उसका सुतेला भाई था। इसके अलावा पुरान में वही कौमी जज्बा था जो यज़गर्द में था। पुरान ने यज़गर्द को अपने बाजुओं में लेकर गले लगा लिया। यज़गर्द पर जज्बातियत का ऐसा गलबा तारी हुआ कि उसके आंसू निकल आए। मर्द बनो यज़दी, पुरान ने यज़गर्द से कहा। न फतह से इतना खुश हो जाना चाहिए और न शिकस्त से इतना दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत है। तुम अकेले तो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे पास रह ही क्या गया है? यज़गर्द ने कहा। जिस कदर फौज इकट्ठी हो सकी वो कर ली और करके आगे भेज दी। मुझे परेशानी है तो सिर्फ ये कि इतनी बड़ी और इतने अच्छे हथियारों की इतनी बड़ी फौज सिर्फ 40,000 आदमियों की फौज से शिकस्त किस तरह खा गई। ये मत सोचो, पुरान ने कहा। इस शिकस्त की जिम्मेदारी रुस्तम पर आयद होती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रुस्तम कितना अरसा आगे जाने से गुरेज करता रहा है? ये तुम थे जिसने उसे कुछ डरा धमकाकर और कुछ बहला वरगला कर मैदान जंग में जाने के लिए तैयार किया था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते महल में दाखिल हो गए। यज़गर्द पुरान को अपने कमरे में ले गया। उसकी माँ वहाँ पहले से मौजूद थी। पुरान, यज़गर्द ने कहा, मेरी माँ को संभालो और इसे समझाओ कि मैं इस तख्त पर बैठकर और फारस का ताज अपने सर पर रखकर तुम्हारा बेटा नहीं रहा। अब मैं फारस का फर्जंद हूँ। मेरे खून का एक एक कतरा फारस की आबरू के लिए वक्फ हो गया है। मैं फारस के पहले बादशाहों की तरह अपने हरीफों को कत्ल करके इस तख्त पर काबिज नहीं हुआ। मुझे रियाया लाई है और रियाया ने मेरे साथ कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। इन बातों को अलग रखो यज़दी, पुरान ने कहा, और ये मुझ पर छोड़ दो। इस वक्त सोचने वाली बातें कुछ और हैं। तुम जानते हो कि मेरा 2000 घुड़सवारों का रिसाला साबात में है और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि ये रिसाला अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं अब इस रिसाले को मुसलमानों के मुकाबले में इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुसलमानों को आगे आने दो। उन्होंने साबात के रास्ते से ही आना है। मैं अपने रिसाले को हिदायत भेजूंगी कि मुसलमानों को कहां और किस तरह रोकना है। पुरान ने जिन 2000 घुड़सवारों का जिक्र किया था, ये एक खास रिसाला था जिसमें फौज के मुंतखब और जांबाज किस्म के सवार शामिल किए जाते थे। इस रिसाले के साथ एक पालतू शेर भी था जो अपने मालिकों के साथ तो मानूस था, लेकिन दुश्मन के लिए वो वैसा ही था जैसे जंगल के शेर होते हैं। उसे दुश्मन पर झपटने की तरबियत खास तौर पर दी गई थी। इस रिसाले की एक रिवायत ये थी कि हर सुबह इस रिसाले के तमाम घुड़सवार एक जगह जंगी तरतीब से इकट्ठे होते और एक मजहबी पेशवा उनके सामने खड़ा होता। वो एक अहद के अल्फाज बुलंद आवाज में बोलता जाता और हर घुड़सवार ये अल्फाज दोहराता जाता था। ये एक अहद था कि जब तक ये रिसाला मौजूद है, फारस की सल्तनत को जवाल नहीं आने देगा और फारस की अजमत को हमेशा जिंदा और ताबिंदा रखेगा। इस रिसाले के रोजमर्रा के मामूलात इस अहदनामे से शुरू होते थे। इसे किसरा का शाही रिसाला कहा जाता था। मुझे रुस्तम के मारे जाने का बहुत अफसोस है, यज़गर्द ने कहा। उस जैसा फौजी कायद कम ही मिलेगा। नहीं यज़दी, पुरान ने कहा, मुझे उस शख्स के मरने का जरा सा भी गम नहीं। मुझसे एक भूल हुई थी। मैंने फारस के दिफा की खातिर तमाम इख्तियारात रुस्तम को दे दिए थे। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि इस शख्स की निगाहें तख्तो ताज पर लगी हुई हैं। औरत उसकी कमजोरी थी। मैं ये बात कहने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करूंगी कि वो मुझे हर वक्त साथ रखता था। अक्सर रातों को भी वो मुझे अपने कमरे में नहीं जाने देता था। वो फारस का ताज अपने सर पर रखने के लिए जिंदा रहने की कोशिश में था। बहरहाल वो अच्छा था या बुरा मर गया है।
मरे हुओं पर आंसू बहाने का ये वक्त नहीं। अब ये सोचना है कि हम जो जिंदा हैं हमें क्या करना चाहिए। तुम अकेले गम न करो, तुम अभी नौजवान हो, हमने जो देखा है वो तुमने नहीं देखा। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पहले तफसील से बयान हो चुका है कि पुरान घोड़े पर सवार होकर फारस के हर उस शहर की गलियों में घोड़ा दौड़ाती फिरती और लोगों के हौसले बढ़ाती और उन्हें शहर के दिफा के लिए तैयार करती रहती थी जहां मुसलमान हमला करते थे। अब उसने वही काम फिर शुरू कर दिया। मदाइन बहुत बड़ा शहर था। पुरान घोड़े पर सवार किसी एक जगह जा रुकती, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते और वो लोगों को सल्तनत फारस पर मर मिटने के लिए बड़े ही जज्बाती अल्फाज में तैयार करती थी। दूसरे दिन यज़दगर्द को इत्तला दी गई कि एक ज़ईफुल उम्र सफेद रीश मिलना चाहता है। यज़दगर्द ने उसे अंदर बुला लिया। उस बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा गोरा और आंखें सब्ज थीं जिनमें ऐसा तासुर था जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। उसके सर पर कपड़े की गोल टोपी थी और उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। उसके एक हाथ में असा और दूसरे हाथ में 15-20 दानों की तस्बीह थी। वो बिलाशुबा मजहबी पेशवा था, लेकिन ये आतिश परस्त नहीं हो सकता था। आतिश परस्त राहिबों का लिबास इस किस्म का नहीं होता था। यज़दगर्द फारस का शहनशाह था। उसके सामने आने वाले रुकू में जाते फिर उसे सलाम किया करते थे, लेकिन उस बुजुर्ग का उसने उठकर इस्तकबाल किया। आइए मुकद्दस राहिब, यज़दगर्द ने कहा, आप यकीनन यहूदी हैं। आपकी इबादतगाह में हमारी तरफ से कोई मुदाखलत तो नहीं होती? नहीं शहनशाह फारस, यहूदी राहिब ने कहा, मैंने अपने घर में ही इबादतगाह बना रखी है। यहूदियों की यहाँ तादाद ही कितनी है कि इबादतगाह तामीर की जाए। मेरे घर में ही ये जरूरत पूरी हो जाती है। आपके ज़ेरे साया हमें कोई तकलीफ नहीं। मुकद्दस राहिब, यज़दगर्द ने कहा, आप शायद हमारी शिकस्त पर इजहार अफसोस करने आए हैं। क्या आप हमारी फतह के लिए दुआ नहीं करते? हम हर रोज आपके लिए दुआ करते हैं। यहूदी राहिब ने कहा, हम आपके वफादार हैं और फारस हमारा वतन है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। हो सकता है आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। अगर आप फारस की भलाई की बात करेंगे तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लगेगी। यज़दगर्द ने कहा, आपने जमाना देखा है, न जाने जमाने के कितने रंग देखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम से रिवायती हथियारों से मुसल्ला 40,000 आदमियों ने इतने अच्छे हथियारों से मुसल्ला 1,20,000 के लश्कर को शिकस्त किस तरह दी है। इन अरबों ने हाथियों तक को काट दिया और दरिया में डुबो दिया है। और ये भी मेरी समझ से बालातर है कि रुस्तम मारा किस तरह गया। मैं मैदान जंग के तमाम हालात से वाकिफ हूँ, यहूदी राहिब ने कहा। सिर्फ कादसिया ही नहीं, मुसलमानों ने यहाँ आकर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं इन सब के हालात बयान कर सकता हूँ। इन 2-3 दिनों में मैंने कादसिया की जंग की हर बात मालूम कर ली है। रुस्तम किस्मत और सितारों के चक्कर में पड़ गया था और जायचे और फालनामे निकाल कर अपनी पेशगोइयां सबको सुनाता था। उसकी पेशगोई ये थी कि सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये पेशगोई सारी फौज में फैल गई। इसका यही असर होना था जो आपने देख लिया है। हमारी फौज इसलिए भाग उठी कि फारस का अंजाम तो बुरा ही होना है, तो हम अपनी जानें और अपना खून क्यों जाया करें। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रुस्तम की पेशगोई गलत है? यज़दगर्द ने पूछा। बिल्कुल गलत, यहूदी राहिब ने जवाब दिया। क्या आपको याद नहीं कि वो जंग में जाने से हिचकिचा रहा था? आपने उसे धमकी दी कि वो नहीं जाएगा तो आप खुद फौज लेकर मुसलमानों के खिलाफ चले जाएंगे। तब उसने सोचा कि ऐसा हो गया तो फारस के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो फौज लेकर निकल गया, लेकिन उसने एक दिन की मसाफत 4 महीनों में तय की। वो कादसियात पहुंच तो गया, लेकिन मुसलमानों के साथ सुलह समझौते की बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा है कि उसकी ये पेशगोई गलत थी कि सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये दरअसल उसके अपने दिल की आवाज थी, इसीलिए वो लड़ना ही नहीं चाहता था। लड़ने में शिकस्त का खतरा भी था और कत्ल होने का खतरा भी। उसे फारस से नहीं बल्कि अपनी जात से मोहब्बत थी। उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी, मगर अब वो अपने आप को इनाम देना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने अपने आप को फारस का बादशाह बना लिया था। उसकी ये ख्वाहिशात और उसके ये इरादे ये पेशगोई अख्तियार कर गए कि सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप पूछते हैं कि इन थोड़े से मुसलमानों ने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त किस तरह दे दी है। वजह बिल्कुल साफ है। मुसलमान एक अकीदे पर यकीन रखते हैं। उन्होंने अपने किस्मत सितारों के साथ वाबस्ता नहीं की हुई, बल्कि अपने हाथ में रखी हुई है। उनके दिलों में अल्लाह और मोहम्मद की मोहब्बत और अकीदत है, जिसे वो अल्लाह का रसूल मानते हैं। रुस्तम ने अपनी जात को सामने रखा, लेकिन मुसलमान अपनी जात से बेनियाज हैं। मैं आपको राज की एक बात बताना चाहता हूँ। आप मुसलमानों से इसलिए लड़ते हैं कि वो आपके मुल्क पर कब्जा न कर लें, लेकिन हम यहूदियों की लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ एक अकीदे और एक नजरिए की खातिर है। आप मैदान जंग में लड़ते हैं, मगर हम जमीन के नीचे से वार करते हैं। हमारे आदमी किसी न किसी बहरूप में किसी सरकर्दा मुसलमान के साथ दोस्ती करते हैं।
बड़ी ही खूबसूरत और तरबियत याफ्ता लड़कियों को जाल में दाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत औरत ही मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। जहां भी हमने ये तरीका इख्तियार किया वहां हमारी लड़की ने मुसलमानों के किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, या उसकी असलियत बेनकाब हो गई और वो कत्ल हो गई, या उसके साथ हमने जो एक दो आदमी मुसलमानों के बहरूप में भेजे वो मारे गए। उनके रसूल की जिंदगी का वाकया है। मक्का वालों ने मदीना पर हमला किया था। मुसलमानों ने मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली और मक्का वाले बाहर खड़े रह गए। मैं उस वक्त वहां नहीं था। हमारे बहुत से यहूदी मदीना में थे। उन्होंने मोहम्मद को अपनी वफादारी का धोखा दिया और मोहम्मद ने उन्हें अपना दोस्त समझकर मदीना में ही रहने की इजाजत दे दी। मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक कुशादा मकान में मुंतकिल कर दिया ताकि कुरैश मक्का कहीं रात को खंदक फांदकर अंदर आ जाएं तो औरतें और बच्चे महफूज रहें। यहूदियों ने अपने एक आदमी को तलवार देकर इस काम के लिए भेजा कि वो किसी तरह इस हवेली के अंदर जाकर एक दो औरतों या बच्चों को कत्ल कर दे और भाग आए। मकसद ये था कि औरतों और बच्चों में भगदड़ मच जाएगी और वहां से शोर शराबा उठेगा तो तमाम मुसलमान खंदक से हटकर इस मकान की तरफ दौड़ेंगे तो उनकी गैर हाजिरी में मक्का वाले खंदक के अंदर आ जाएंगे। खंदक को फांदना आसान नहीं था, लेकिन जगह कुछ कम थी जहां खंदक नहीं थी। इस तरफ मुसलमानों ने अपनी खासी तादाद बिठा रखी थी। अगर हमारा आदमी कामयाब हो जाता तो अहले कुरैश उस तरफ से मदीना में दाखिल हो जाते। हमारे आदमी को किसी ने इस मकान के करीब मशकूक हालत में देख लिया। उसे वहीं कत्ल कर दिया गया। कत्ल किसी आदमी ने नहीं किया बल्कि एक औरत ने किया और ये औरत मोहम्मद की फूफी थी। यहूदियों ने इस आदमी के कत्ल हो जाने के बावजूद मक्का वालों को मदद देने की और मुसलमानों को शिकस्त दिलवाने की बहुत कोशिश की थी। ये कोशिश खुफिया थी, फिर भी मुसलमानों को इसका इल्म हो गया। मोहम्मद ने इसकी पादाश में मदीना के तमाम यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इसके बावजूद यहूदी जहां भी थे वहां उन्होंने मुसलमानों की पीठ पर वार करने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। मुकद्दस राहिब यज़दगर्द ने कहा, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ और ये मैं पहले से ही जानता था कि मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो यहूदी है। आप मुझे बातें न सुनाएं। इस वक्त जरूरत यह है कि मुसलमानों को रोका जाए, वो दजला पार न कर सकें। हाँ शहनशाह फारस, यहूदी राहिब ने कहा, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुसलमानों की पेशकदमी को पसपाई में तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि मर्द की दो सबसे बड़ी कमजोरियां मुसलमानों के खिलाफ बेकार और नाकाम हो चुकी हैं। एक शराब है और दूसरी औरत। मुसलमान माले गनीमत में हर एक चीज इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन शराब कितनी ही कीमती क्यों ना हो वो फेंक देते हैं और उन बर्तनों को भी नहीं उठाते जिनमें शराब होती है। वो औरतों को तो ले जाते हैं लेकिन उन्हें मदीना भेज देते हैं और उनके हकदार वही होते हैं जो उनके साथ बाकायदा शादी कर लेते हैं। हमारे पास जादू है जो हम आजमाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो अशिया दरकार हैं वो इकट्ठी करने और उन पर अमल वगैरह करने के लिए बहुत दिन लगेंगे। अगर आप ये अशिया मुहैया कर दें तो हम ऐसा जादू कर सकते हैं कि मुसलमानों के सालार अंधे हो जाएंगे। अंधे सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं होंगे बल्कि वो अक्ल के भी अंधे हो जाएंगे। फौरन बताएं, यज़दगर्द ने कहा, आपको क्या क्या चीज चाहिए? एक नौखेज लड़की, बूढ़े राहिब ने कहा, एक नौजायदा बच्चा जिसकी उम्र 3 दिनों से ज्यादा ना हो, 2 उल्लू, ये तो हैं जानदार अशिया। दूसरी चीजें जो दरकार हैं वो हम खुद इकट्ठी कर लेंगे। यज़दगर्द ने उसी वक्त हुक्म दे दिया कि ये अशिया यहूदियों की इबादत गाह में फौरन पहुंचा दी जाए। यहूदी राहिब चला गया। ये पहला वाकया नहीं था कि यहूदी मुसलमानों पर जमीन दोज वार कर रहे थे। इस्लाम के खिलाफ यहूदी फितने की तारीख में ऐसे कई वाकयात मिलते हैं। इसके बाद भी यहूदियों ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई ढंग खेले। मुअर्रिख लिखते हैं कि एक तरफ यहूदी जादू का हरबा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों ने जो कामयाबी हासिल की थी वो तो किसी जादू का ही करिश्मा लगता था। मुसलमानों की तादाद जंगे कादसिया की इब्तदा में 40,000 थी। उन्हें 6,000 की कुमक मिली। इस सारी तादाद में 8-9 हजार मुजाहिदीन शहीद हो गए थे। जख्मियों की तादाद बेशुमार थी, जिनमें तकरीबन आधे मुजाहिदीन लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। इसके बावजूद वो मदाइन की तरफ बगैर आराम किए पेशकदमी कर रहे थे। बज़ाहिर वो कामयाब होते नजर नहीं आते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को हुक्म भेजा था कि जब तक उनका अगला हुक्म ना पहुंचे वो कादसिया में ही रहें। अलबत्ता अपने दस्ते आगे जरूर भेजें ताकि फारसी कहीं इकट्ठे ना हो सकें। इन 2 महीनों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और साद रज़ियल्लाहु अन्हु की आपस में खासी पैगाम रसानी हुई। 2 महीने पूरे हुए तो एक रोज साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास ने ऐसे महसूस किया जैसे उनका दर्द गायब हो गया हो। वो उठ खड़े हुए, चले और कमरे में चलते ही रहे। उनका दर्द वाकई खत्म हो चुका था। उन्होंने जिस्म को हर तरह की हरकत दी, यहाँ तक कि बाला खाने से उतरे, अपने घोड़े पर बैठे, घोड़े को चलाया भी तो उन्हें कोई तकलीफ महसूस न हुई। तमाम मुअर्रिखों ने इस मौजज़े का जिक्र किया है।
سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اور سلمہ نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فارس کا نوجوان اور وطن کی محبت میں دیوانہ شہنشاہ یزدگرد محل کے باہر 50-60 آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب زخمی تھے، زخمی بھی ایسے کہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ قادسیہ سے مدائن تک بڑی مشکل سے پہنچے تھے۔